Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brajesh and I am the English faculty at Manu Law classes. आज के इस वीडियो में we are going to talk about 5-year law program from Aligarh Muslim University. Before we begin, I would like to tell you that our 1-year and 2-year courses are lined up. You can call us and enroll with us today. For more inquiry, you can visit www.lawentrancindia.com. And you can also call our representative who will guide you, counsel you and tell you each and everything about the CLAT, ALET and other law entrance examination and how you can grow in legal field. For more information, you can call us at 9971 444 054. You can also avail our 15 days free trial program. For that, you need to find the link in the description below as the slide suggests. What you get in this 15 days free trial? You basically get live interaction with teachers, you get recorded conceptual videos, you get topic tests, you get sectional tests, and your performance is also monitored through our state-of-art platform. You can also join our Telegram channel wherein we upload questions based upon CLAT new pattern, and it also helps you attempt the ALET exams as well. We also provide you detailed rationale of all the questions which we provide on Telegram so that you do not miss out with your question and answer as well. To join our Telegram channel, you can refer to our website, that is lawentrancindia.com. You will find a link there and you can join through that. So जैसा कि आप जानते हैं that in today's session we are going to talk about 5-year law program from AMU, which is Aligarh Muslim University. अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 5-year law program करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों की, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और सब कुछ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. सो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो सके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो एक स्टूडेंट के मन में आता है जब वो लॉ के लिए अप्लाई करने जा रहा है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AMU. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने कंपाइल किए हैं दैट इज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फ्रॉम आवर वेरियस स्टूडेंट्स हु हैव आस्क्ड अबाउट AMU. देखो जनरली सभी के मन में ऐसा होता है कि ऐसे यूनिवर्सिटी से लॉ करें कि हम बेस्ट एजुकेशन पाएं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि वो दूर नहीं जा सकते एंड दे सीक एडमिशन नियर बाय देयर लोकेलिटी or in their state itself so that they do not have other problem like convenience and travel and so many issues like there are in families and all. अगर आप AMU से LLB करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर दैट लेट अस फोकस ऑन सम ऑफ द FAQs दैट जनरली अ स्टूडेंट आस्क्स. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लॉ प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय AMU. तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे 3-year प्रोग्राम नहीं है. यू विल ओनली गेट इनरोलमेंट इन 5-year प्रोग्राम जिसमें कि आपको BA LLB ही अवेलेबल है. Okay, the next question is what educational qualifications are required for AMU BA LLB. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में. बेसिकली आप 12th पास होने चाहिए 50% से अबव मार्क्स के साथ. नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर ऑफर्ड इन BA LLB प्रोग्राम. देखो AMU के 3 कैंपसेस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो कि LLB के प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है 5 years. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप कहां से हो और आप किस कैंपस में जाना चाहते हो. सारे कैंपस और उसमें कितने सीट्स हैं, ब्रेकडाउन हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट इज इट एन ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम. बेसिकली ये ऑफलाइन एग्जाम है लेकिन इसकी जो फॉर्म फिलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर AMU BA LLB. जैसा कि अभी मैंने बोला कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसका मैं वेबसाइट और उसके लिंक के साथ इस PPT में डाल दूंगा, सो यू कैन रेफर टू दैट. Next is what topic should I cover for AMU BA LLB. This is a very good question because unlike other universities जिन्होंने अपने breakdowns तक दिए हुए हैं that what syllabus are to be covered, but AMU के साथ ऐसा नहीं है. AMU ने syllabus अपलोड किया है but you have to understand that syllabus clearly otherwise you will end up failing this examination. तो हम डिस्कस करेंगे उसमें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए आगे के स्लाइड्स में. नेक्स्ट, इज देयर एनी एज क्राइटेरिया. ऑफ कोर्स देयर इज एन एज क्राइटेरिया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट,
Is there any negative mark in AMU BLLB entrance exam? Of course, when there is entrance examination, there are negative markings. तो आप expect करें कि हाँ, there is a negative marking. So अब आते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है. We will also talk about what it is, when was it established, who established it, and then we will switch to its law faculty. देखो आज हम AMU के बारे में बात नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से. We are talking about AMU law, है ना. तो हमारा जो फोकस होगा केवल लॉ के ऊपर होगा, ना कि अदर चीज़ों के बारे में. एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही पुरानी है और बहुत ही अच्छी है. बहुत सारे प्रोमिनेंट्स लोगों ने यहाँ से पढ़ाई करी है और वो जीवन में बहुत सफल हुए हैं. यू कैन गूगल देम एंड फाइंड देयर नेम्स ऑन गूगल. सो आइए अब आगे के स्लाइड्स में हम जानते हैं कि AMU कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है. द फर्स्ट पिक्चर दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द मेन बिल्डिंग ऑफ AMU. And the next is its law department जो कि बहुत ही beautiful है. Next is the gate. It is newly built as per the information I received from Google and other sources. And this is its moot court facilities. And also by this picture, it will be a clear thing in your mind that okay, I have decided to do LLB from AMU, so let me see how my faculty looks like, how my campus looks like. It gives you kind of encouragement ki wow, I'm going to study in this university, and you become so excited. Yes, this is the university I have chosen and I'm going to get it. And trust me guys, the entrance paper that I have seen on Google and YouTube that are quite easier than CLAT and ALET. If you are preparing for AMU, must go for it. So let us talk about Aligarh Muslim University. First we will talk about its campus. The campus of Aligarh Muslim University is spread over 467.6 hectares in the city of Aligarh. So ये अलीगढ़ में basically स्थापित है जो उत्तर प्रदेश में आता है. ठीक है. The next is it was originally established by Sir Sayyid Ahmad Khan, okay, as the Muhammadan Anglo-Oriental College. So सबसे पहले सर सैयद अहमद खान जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी जो कि 1875 में करी थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920 बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके जो फाउंडर हैं इन्होंने कब स्थापित किया था एंड इसका नाम क्यों चेंज हो गया एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन समटाइम्स दे आस्क इन जीके सेक्शन, राइट. जैसा कि हमने BHU में बात किया था दैट व्हेन वंस आई अपीयर्ड फॉर BHU एग्जामिनेशन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी. ठीक है. सो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन जो जाना होगा दैट इज अलीगढ़ जंक्शन. ठीक है. इट हैज 3 ऑफ कैंपस सेंटर इन AMU मलप्पुरम कैंपस केरला. द फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ऑफ कैंपस, राइट. सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो है ही एक कैंपस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. साथ ही साथ इसका जो दूसरा फर्स्ट कैंपस है दैट इज AMU मलप्पुरम. नेक्स्ट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुर्शिदाबाद सेंटर जो कि वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है. आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, बल्कि ये मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया है बिकॉज इस कैंपस में आपको LLB नहीं मिलता है, सो दैट इज वाई. बट ये इसके ऑफ कैंपसेस हैं, दैट्स वाई इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द लिस्ट विच इज किशनगंज सेंटर इन बिहार. सो अगर आप अदर कोर्सेज में इंटरेस्टेड है सो यू कैन गो फॉर दैट, बट इफ यू आर ओनली हियर फॉर LLB देन किशनगंज बिहार सेंटर इज नॉट फॉर यू. ओके. सो अभी तक हमने जाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड इसके कैंपस के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ फैकल्टी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन. लॉ स्कूल ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच हैज़ अ हिस्ट्री ओवर 100 years of teaching and writing law. The law classes were inaugurated by Justice Douglas Strait on December 29, 1891. ठीक है. And in 2014 the faculty was listed number 6. ठीक है. नंबर 6 का रैंक मिला हुआ था 14 में, जो कि 15 और 16 में भी बना रहा. किसने दिया था इसे? दैट वाज बाय इंडिया टुडे. ओके. सो नाउ यू कैन सी दिस लॉ फैकल्टी इज वेरी फेमस. सो जैसा कि मैंने पहले भी स्लाइड्स में बोला था कि बिफोर यू गो टू एनी यूनिवर्सिटी आप उसके प्रोडक्ट्स को देख लो. जैसे क्या होता है, देखो इन जनरल सेंस क्या होता है कि आप एक पेड़ की पहचान उसके फलों से करते हो. ठीक है. सो यूनिवर्सिटी कैसी है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इट्स फल मीन्स फ्रूट्स, कि मीन्स उसमें से कौन कौन लोग हैं जो पढ़कर अभी तक लाइफ में कहाँ पहुँचे हुए हैं. सो दैट यू विल फॉलो दैट
ट्रैक कि हाँ जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज काइंड ऑफ अ पेप टॉक फॉर यू। आप एक यूनिवर्सिटी को उसके फलों से पहचान सकते हैं। सो ऑलवेज सीक फॉर दोज पीपल who have done their studies from that university itself. Let us talk about the admission test of AMU BLLB that is conducted in 3 cities. ठीक है, ये 3 cities में कंडक्ट होते हैं। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं BLLB के बारे में, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के बारे में। देयर आर 120 सीट्स। ओके, द नेक्स्ट इज कोलकाता वेस्ट बंगाल, जो इसके मुर्शिदाबाद कैंपस के बारे में होता है, एंड कोलकाता में इसकी टेस्ट होती है। ऑलराइट, सो देयर विल बी 60 सीट्स देयर। एंड देन द थर्ड सिटी इज कोचिकोडे, जो कि केरला में अवेलेबल है, और यहाँ पे इसका टेस्ट होता है मल्लापुरम कैंपस के लिए, जो कि 60 सीट्स के साथ होता है। सो ऑल टुगेदर वी कैन सी दैट देयर विल बी 240 सीट्स फॉर BLLB प्रोग्राम, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। तो जब आप फॉर्म भरते हो उसी समय योर चॉइसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड एंड अकॉर्डिंगली यू आर गिवन द सेंटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटर, हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। जैसा कि हमने देखा था BHU हैड इट्स ओन वेबसाइट फॉर जनरल क्वेरीज एंड देन फॉर एप्लीकेशन, द सेम वे AMU के पास भी अपने 2 वेबसाइट्स है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि www.amu.ac.in है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। आई हैव पेस्टेड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट फ्रंट पेज सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट कि हमें कहाँ से फॉर्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी भी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम फाइंडिंग द राइट प्लेस वेयर दे कैन अप्लाई। सो एप्लीकेशन के लिए यू कैन रेफर टू दिस वेबसाइट विच इज www.amucontrollersexam.com। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि आप किसी भी मायने में कंफ्यूज ना हो while you are filling the form. Okay, moving on to the next slide which is programs offered by AMU law faculty. अब हम बात करते हैं कौन से प्रोग्राम हमें लॉ फैकल्टी में मिलते हैं। ठीक है, सो द लॉ फैकल्टी AMU is currently offering these courses, right, which is 5-year integrated Bachelor of Art and Bachelor of Laws, that is BA LLB. So only BA LLB, not BSc LLB or BCom LLB, only BA LLB. Okay, इसके बारे में बात कर रहे हैं। This is basically for those who are 12th passed, ठीक है, और appearing in 12th class. Next is 2-year Master LLM program. आप यहाँ से LLM भी कर सकते हैं if you are a law graduate और आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो। Next is Doctor of Philosophy which is PhD. ऑफ कोर्स PhD आप कब कर पाते हो, जब आपने LLM कर लिया है तो। अगर आप PhD करना चाहते हो, सो दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो वेलकम्स यू एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज एज अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। सो अभी तक हमने देखा कि जो AMU लॉ फैकल्टी है वो किस किस तरह के कोर्सेज लॉ में प्रोवाइड करती है आपको। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 5-year प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है। And we are basically training those students who are 12th passed and seeking their career in law. So let us talk about the 5-year program which is BA LLB from AMU. सबसे पहले हम eligibility के बारे में बात करेंगे। The eligibility is आप 12th पास होने चाहिए या कोई equivalent exam पास होने चाहिए from the recognized board. Okay? Next, जो आपकी maximum marks है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए 12th में। Alright? Age नॉट मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई। सो जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, आपकी जो एज है वो 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। ऑलराइट, नेक्स्ट BLLB प्रोग्राम है जो कि 5 ईयर का होता है, 10 सेमेस्टर लिए जाते हैं इसमें। द थर्ड पॉइंट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स फी, एप्लीकेशन फी। ऑलराइट, सो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखा दिया है आपको, वेयर यू आर गोइंग टू गो फॉर एप्लीकेशन। 650 रुपीज़ इसकी फ़ीस है जो आप एप्लीकेशन के लिए देते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन गाइज, ये जो है वो इंग्लिश में होता है। मीन्स आई हैव सीन द पेपर दैट इज़ टोटली इन इंग्लिश। सो इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता। लाइक वी टॉक्ड अबाउट BHU में क्या था कि 2 भाषा में, दैट वाज इन बाईलैंग्वेज। ओके, बट दिस इज़ टोटली इन इंग्लिश। ऑलराइट, सो इंग्लिश मीडियम में आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन मीन्स पेन पेपर बेस्ड होगा।
जो कि 2 घंटे में आपको फिनिश करना होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस है, एंड दीज 100 क्वेश्चंस आर नॉट वेरी हाई आई वुड से इन कंपैरिजन टू CLAT, ALET एंड DU, बट दे आर ऑफ अ गुड क्वालिटी. सो आई वुड सजेस्ट दैट स्टडी हार्ड. आप पढ़ के जाओ कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जस्ट बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर इट, योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट सीट इज काइंड ऑफ becomes impossible if you take it lightly. So अगर आप किसी भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, whatsoever, आप तैयार करके जाओ, गिव योर बेस्ट. कि अगर आप ना भी सेलेक्ट होते हो, सो यू विल नॉट बी एंड अप रिग्रेटिंग कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था. ऑलराइट, सो टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं. इट मीन्स पर क्वेश्चन यू आर गिवन 1 मार्क. ओके, so marking scheme 1 mark for 1 correct answer as I just said, and इसमें 0.05 की माइनस मार्किंग भी होती है. ठीक है, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स देयर इज 0 फॉर दैट क्वेश्चन. सो लेट अस टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ सीट्स, जो कि अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ. अगर आप मेन कैंपस अलीगढ़ में चाहते हैं, सो देर आर 120 सीट्स. अगर आप मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल कैंपस है, दैट इज 60, देर आर 60 सीट्स. एंड मालापुरम, दैट इज इन केरला, देर आर 60 सीट्स. सो यू कैन सी दैट देर आर 240 सीट्स फॉर BA LLB प्रोग्राम. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की, विच इज एरियाज टू बी टेस्टेड. आपको जो AMU में पेपर मिलता है वो किन एरियाज में टेस्ट करता है. ठीक है, सो हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. देखो मैंने क्या बोला था, द सिलेबस विच हैज बीन गिवन बाय AMU इज क्वाइट वेग, जो क्लियर नहीं है. ठीक है, आपको 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, बट आपको उसमें से रीड बिटवीन द लाइन करना होगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. देखो इसमें कहीं भी लीगल एप्टीट्यूड आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लीगल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ोगे. ठीक है, छुपा कहाँ पे, दैट आई विल शो यू. द फर्स्ट थिंग इज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स. गाइस, इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है. ठीक है, अगर आप कुछ ग्रामर के अच्छे किताब को रेफर करते हो, इफ यू रेफर टू MLC किट या किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, वहां पे यू आर गिवन सम किट. अगर आप उसके रूल्स को पढ़ लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी रखना, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम कोई भी कोचिंग आपको ड्रिल नहीं कर सकता इन योर माइंड अनलेस यू आर लर्निंग इट बाय हार्ट बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू learn a lot the synonyms, antonyms and other words, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम को पूछते हैं. उसके बाद आपकी जनरल ग्रामर, उसके बाद आपकी कॉमन एरर्स, देन यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन टैग, इवन यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम नरेशंस एज वेल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते अदर एग्जाम्स में, लेकिन AMU के एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो ऑल टुगेदर इफ आई सम अप, तो सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT, आप उसमें नरेशन भी जोड़ लो एंड स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ये 40 मार्क्स का होता है एंड हैज अ गुड वेटेज हियर. नेक्स्ट इज करंट अफेयर जनरल नॉलेज. देखो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, सो दैट दे विल बी आस्किंग हाउ अपडेटेड यू आर. आप अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर. अगर आपको आसपास क्या चल रहा है इससे मतलब ही नहीं है, सो हाउ आर यू टैकल द सिचुएशन इन फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. ठीक है, अब उसके बाद जो ट्रिक है वो यहाँ पे है, विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज. देखो लीगल इश्यूज से ही आपके सारे के सारे लॉ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे यहीं पर वो. सो इन दिस 40 मार्क्स देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एज वेल एज all these basic law that is being taught to a 12th student who are preparing for CLAT and ALET, जैसे कि law of torts, law of contracts, IPC, basic knowledge of CRPC, evidence and a lot of constitution. okay, so constitution इसलिए क्योंकि जब आप 12th क्लास में होते हो तो आप एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स ग्रुप, तो पॉलिटिकल साइंस में ही सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट जो जेस्ट होते हैं वो आपको पढ़ा चुके होते हैं. ठीक है, सो दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, और लॉ जो है वो आर्ट्स का फील्ड है. ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि आपने लॉ की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, एंड वी आर देयर फॉर यू. अगर आपको कभी भी किसी भी समय यू थिंक दैट सर आई नीड गाइडेंस, आई नीड काउंसलिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस, वी आर हियर फॉर यू. नेक्स्ट वन इज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. रीजनिंग में आपका बोथ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो भी क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं, जिसमें जो सारे सीटिंग अरेंजमेंट से लेके कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर आज. क्रिटिकल रीजनिंग पे कम फोकस किया जाता है, ऑन दी अदर हैंड एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा है. एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स होते हैं, जिसमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज एंड अदर टॉपिक्स कैन बी कवर्ड. सो ऑल टुगेदर यू कैन सी दैट 40 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 40 मार्क्स फॉर GK एंड LA लीगल एप्टीट्यूड. आप इसे इग्नोर ना करें, यहीं पे वो ट्रिक छुपा हुआ था दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. फिर उसके बाद आपका 20 मार्क्स जो है वो रीजनिंग और मैथ्स के लिए
दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की। व्हाट इज द रैंकिंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क विच इज NIRF ने रैंक किया था फैकल्टी ऑफ लॉ AMU को 17 इन 2020। ठीक है, 17th रैंक है। जैसा कि हमने बात किया था BHU के बारे में, दैट वाज रैंक्ड 19 बाय NIRF, लेकिन AMU जो है वो 17 रैंक पे है अवेलेबल इस समय 2020 में। उसके बाद 2021 में इंडिया टुडे जो कि अपनी नेल्सन रैंकिंग करता है, उसमें इन्होंने लॉ फैकल्टी ऑफ AMU को 11 रैंक किया हुआ है। ऑलराइट, so by this you can see that the university you are seeking after is a very good university and has been produced a lot of prominent people from it. Okay, so let's talk about the accommodation. कुछ स्टूडेंट्स के मन में होता है सर हमें रहने के लिए क्या मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा। खाने के लिए I cannot tell you because I am not a product of that university, but हाँ, रहने के लिए whatever the basic information that I can fetch from Wikipedia or Google from any other sources that I am presenting over here. First slide is the law school provides separate hostels and mess facility to boys and girls, of course. So it is a residential university with most of the staffs and students residing on the campus. ठीक है, कैंपस में ही रहने को फैसिलिटी दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा है because it kills a lot of time when you are traveling. Okay, travel बहुत टाइम लेता है। ऑन दी अदर हैंड कुकिंग भी बहुत टाइम लेता है फॉर ए स्टूडेंट लाइफ। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है so do not go for mess and any other ready-made sources, right? And there are 19 halls of residence for students, 13 for boys and 6 for girls with 80 hostels. So you can see that ये बहुत ही बड़ा कैंपस है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। So आपको किसी भी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, because it is a prominent law university. You can refer to its website and get all the information about various courses which it offers, क्योंकि हमने केवल लॉ प्रोग्राम के बारे में बात किया है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी तरीके से और जानकारी के लिए जो शायद इस वीडियो में मिस आउट हो गई हो, क्योंकि दिस वीडियो वाज मेड कीपिंग अ क्लैट और एलेट एस्पिरेंट और अ स्टूडेंट हु इज इन 12th क्लास हु वांट्स टू गो इन लॉ फील्ड, तो मैंने उसमें सारी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। बातें तो बहुत सारी होती है दैट वी टॉक अबाउट इन यूनिवर्सिटी, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट relevant thing which are necessary to know. At last we will discuss about contact detail, जिसमें मैंने सारे आपको contact दे दिए हैं जो भी मुझे Google पे मिला हुआ है, the website, the email that you can get some inquiry there, and then how to go for admission. There is an email ID for that, and there are some contact number you can find it on Google also, on its website also, and for ready reference I am presenting it to you. All right. So with these words I would like to say thank you to everybody who listened to the video till the last. आप देखो कि आप कहाँ लाइफ में जाना चाहते हो अगर आपने लॉ को चुना हुआ है तो। ठीक है, so whenever you are going to select a university, make sure that you are doing your own research on it. We made this video so that you can get everything in a ready reference, and also we are here to help you with your queries, with your doubts, with your all the questions that you come in your mind. So make sure, feel free to call us on the number that is 9971444054 and reach out to us for any query and admissions, right? So at last I would like to say thank you so much everybody for watching the video till the last. Corona अभी भी बना हुआ है, so I would like you to take a proper care, follow all the instruction given by Government of India, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, हर चीज़ में संभाल कर रहें। अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ खुद को बचाएं और दूसरों को बचाएं। थैंक यू सो मच।